you're struggling with maths and accounts in class 12, then this video is for you. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. So last week I posted a video on a comprehensive guide to getting 99% in class 12, just like I did. Check it out if you haven't already. And as you know, I read all of your comments and reply to them as well. And I saw two problems that all of you guys were facing. The first one was, how do we study accounts and maths? And the second problem was that we are studying properly, लेकिन फिर भी mock test में marks आ ही नहीं रहे हैं. So in this video, I will be discussing both of these things. So without further ado, let's get right into it. Let's talk about the maths and accounts strategy first. सबसे पहले तो भूल जाओ कि maths and accounts tough होता है. अगर तुम्हारे मन में पूरा टाइम यही चलता रहेगा, यार ये तो मुश्किल है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं ला पाऊंगी full marks, तो तुम सच में नहीं ला पाओगे and you won't be able to study properly. इसलिए just remember that the only thing that's stopping you from getting 99 in maths and accounts is you, so you need to change that. Now the next and the most important thing is to understand the concepts thoroughly. Maths and accounts theory subjects नहीं है जिनमें तुम रट्टे मार लोगे तो marks आ जाएंगे. Rote learning is not going to help. You need to understand exactly why are things happening the way they are happening in questions. Especially accounts में it's very important to understand the logic of क्यों debit credit हो रहा है, क्यों add हो रहा है, subtract हो रहा है, whatever it is. And let me tell you, class 12 की maths and accounts काफी ज्यादा काम आती है even in your college life. And अगर तुम्हें कोई भी concept में doubt है, अपने textbook से 2-3 बार उसको पढ़ो, नहीं समझ आ रहा है तो YouTube video देखो to understand the concept. I'll link an old video over here जहाँ पे मैंने सारे subjects के लिए YouTube channels and books बताई थी, so you can check it out after this video. And यहीं पे one more important step is to maintain a concepts and formulas book, one for maths, one for accounts. This is very important. इसके बिना नहीं हो पाएगा काम, especially revision में ये books बहुत ज़्यादा काम आएंगी. All you have to do is whatever formula or like major concept that you are remembering that is needed to solve questions, उनको इन notebooks में लिख के रख लो ताकि बाद में जब भी कोई confusion हो, you can always refer back to them. Now the next step is to prioritize the high weightage topics. Already board exams में काफी कम दिन बचे हैं, so it's time to buckle up. तुम हर एक छोटे-छोटे concept पे 10-10 घंटे नहीं लगा सकते हो. You have to focus on those concepts जो exam में हर साल आते हैं. यहाँ पे the good thing about board exams is कि questions usually repeat होते ही हैं. The paper pattern is fixed. For example, in accounts, you know there is going to be a question on cash flow statement or even partnership and so many more topics. Maths में differentiation पक्का आएगा, probability पक्का आएगी, and remember them properly ताकि जैसे तुम्हें exam में question दिखे, you can solve it very very quickly. And जब तुम अपना study schedule भी बनाओगे to cover all the concepts of maths and accounts, make sure कि पहले तुम इन वाले topics and concepts पे ज़्यादा time दे रहे हो, and then if you have some extra time here and there, you can focus on the less important topics. The next and the very very crucial step is to practice daily. जब भी मैं practical subjects की बात करती हूँ, especially the one and only thing you need to remember is कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है. एंड तुम्हें रोज की रोज मैथ्स एंड अकाउंट्स करना ही है प्रैक्टिस, चाहे कुछ भी हो जाए. इवन इफ दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी इट फॉर 30 मिनट्स ईच, यू कैन नॉट स्किप इट व्हाटसोएवर. इससे एक तो तुम्हारी ब्रेन की रोज रेगुलर प्रैक्टिस होगी एंड यू विल ऑल्सो गेट बेटर एट द कॉन्सेप्ट्स डे बाय डे. नाउ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज यू हैव लेफ्ट, तुम अपने सारे सिलेबस की एक्सरसाइजेस को डिवाइड करो एंड फिगर आउट हाउ मेनी डेज यू नीड टू डू देम. अगर सिलेबस ज्यादा है और दिन कम है तो फिर तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी इन सब्जेक्ट्स की इन अ सिंगल डे. But you need to remember you have to do it. There is absolutely no other way to get higher marks in these subjects. And another thing is to set a timer when you solve questions of maths and accounts. इससे तुम्हारी speed build होगी for the exam day. क्योंकि ये ऐसे subjects हैं, अगर तुमने कोई भी question पे ज्यादा time लगा लिया तो you will not be able to complete the paper and we don't want that. And don't worry, हो सकता है starting में तुमसे कोई भी question solve नहीं होगा. You will do first 2 questions, first 5 questions, first 10 questions, नहीं होगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है. वंस यू रीच द 15th क्वेश्चन, आई प्रॉमिस यू तुम कर पाओगे. इट्स जस्ट अबाउट कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग दीज सब्जेक्ट्स. पिक अप योर एनसीईआरटी, पिक अप योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पिक अप द रेफरेंस बुक्स दैट यू आर यूजिंग. जैसे अकाउंट्स में तुम टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल यूज कर रहे होगे, उनके क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन, सब कुछ प्रैक्टिस करो. अनदर थिंग टू कीप इन माइंड स्पेशली फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इज टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स. ये मैथ्स एंड अकाउंट्स ही ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें तुम इतनी स्टूपिड गलती करोगे ना कि तुम्हें बिलीव ही नहीं हो
आएगा when the result will come. I remember जब मैंने क्लास 10 का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम दिया था, I got a 99 and मेरा 1 मार्क रह गया था because instead of subtraction I did addition. It is the most stupid thing I have ever done. But यही गलतियां होती हैं जो तुम अगर अपने प्रैक्टिस सेशन में करोगे तो एग्जाम वाले दिन में भी करोगे. तुम्हारी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए. These are mistakes that you cannot afford to make because it can cost you 1 mark like it did for me. And इसके लिए one thing you can focus on is writing your answer very neatly, properly and it should be structured. बोर्ड एग्जाम में तो स्टेप मार्किंग होती है, that means steps के मार्क्स मिलते हैं, तो फालतू में कोई होशियारी मारने की जरूरत नहीं है. राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप सो यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स. अकाउंट्स में जब तुम लेजर्स बनाओगे प्रॉपर टाइटल दो, डेबिट क्रेडिट सही से लिखो, मेक प्रॉपर कॉलम्स, इट विल मेक योर लाइफ इजियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर डेली शेड्यूल. कैसे सही से पढ़ाई करनी है बोर्ड एग्जाम तक. आई फोकस ऑन मैथ्स एंड अकाउंट्स बट इसमें यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट द थ्योरी सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली. सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन करो हर दिन का. एज आई सेड मैथ्स एंड अकाउंट्स रोज करना ही है, गोज विदाउट सेइंग. एंड साथ में जितना टाइम है डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट 1 or 2 theory subjects in a day. उससे ज्यादा subjects मत करो, it will get too heavy for you. And minimum तो I'm giving you like a bare minimum 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा अकाउंट्स तो करना ही है. इससे ज्यादा करोगे तो it's always better. Next, setting daily targets. ये भी काफी important है क्योंकि बहुत limited time है हमारे पास पढ़ने के लिए. So divide your entire syllabus या जो भी concepts बचे हैं according to the number of days you have. And last में keep time for revision and mock test too. So let's say सुबह में 30 minutes, 45 minutes to 1 hour तुमने रिविजन कर दिया सारे कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स का ऑफ दैट स्पेसिफिक चैप्टर. उसके बाद यू कैन डू अदर स्टफ, स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट्स. फिर दोपहर में यू फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फॉर 1 or 2 hours अकॉर्डिंगली. शाम को अगर टाइम है तुम्हारे पास देन यू कैन गिव मे बी मॉक टेस्ट, शॉर्टर मॉक टेस्ट जो 1-2 घंटे के ही होंगे, या तुम अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. एंड इसी के साथ वीकली टारगेट्स भी होने चाहिए. वीकली टारगेट्स में यू कैन डिसाइड कि इस हफ्ते मुझे ये 1-2-3 चैप्टर्स खत्म करने, जितना भी टाइम है. एवरी वीक यू हैव टू गिव अ मॉक टेस्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट. अभी बोर्ड एग्जाम में 1 आधा महीना ही बचा है तो इसलिए मॉक टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दो if you haven't already. Talking about mock test, it brings me to the second part of the video, that is how do you make sure कि तुम्हारा score increase होए with every mock test that you give. उसके लिए the first important thing is that you have to analyze तुमने किया क्या है अपने एग्जाम में. ऐसा नहीं सोचना है कि मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स आ गए, छुट्टी, अब जो हुआ हुआ, अब अगले टेस्ट में देखेंगे. डू नॉट डू दैट. अब एनालिसिस कैसे करनी है. फर्स्टली आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स you've made. या कॉन्सेप्चुअल एरर है या सिली मिस्टेक करी है, कंफ्यूजन था, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आंसर सही से नहीं लिखा. What is the issue you are facing? Second step is to maintain an error log. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने इतने मॉक टेस्ट दे दिए हैं और अभी भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, देन जो मिस्टेक्स तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो उसको एक बुक में, एक शीट ऑफ पेपर में लिख के रखो. इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि आर यू मेकिंग द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन. जो भी इशू है आइडेंटिफाई हो जाएगा बिकॉज यू विल सी पैटर्न्स ओवर हियर. नाउ वंस दैट इज सॉर्टेड यू हैव टू रीविजिट एंड रीसॉल्व. 3-4 दिन बाद जो भी गलतियां तुमने पहले करी थी उनको वापस सॉल्व करो एंड सी इफ you're still making the mistakes, if you've still not understood it. Obviously it goes without saying अगर बार बार एक ही चीज में गलती हो रही है तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, रोज पढ़ो जब तक अच्छे से याद नहीं हो जाए, ब्रेन में फिट ना हो जाए. एडिशनल टिप ओवर हियर, डोंट टेक योर मॉक टेस्ट कोर्स टू योर हार्ट. इट्स ओके अगर अभी कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 महीना है, वी विल इम्प्रूव एंड वी विल बिल्ड इट अप. धीरे धीरे व्हेन यू विल यूज दिस मॉक टेस्ट का स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट मी तुम्हारे मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएंगे. इट विल बिगिन विद प्रोबेबली 1 or 2 मार्क्स, लेकिन धीरे धीरे करते करते +10 +12 मार्क्स हो जाएंगे एंड यू वोंट इवन रियलाइज यू विल ऑलरेडी बी नियरिंग 99% इन नो टाइम. सो यार जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड रिमेंबर कि तुम क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हो, क्यों तुम मार्क्स लाना चाहते हो. टू मेक योर सेल्फ प्राउड, टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड टू गेट अ गुड कॉलेज इन द फ्यूचर. ऑल्दो तुम्हारा अंडर ग्रेजुएशन का कॉलेज डायरेक्टली क्लास 12 के मार्क्स से लिंक नहीं है, फ्यूचर में काम आएगा. एंड प्लस यू नो CUET एंड क्लास 12 का सिलेबस इज सेम. सो इफ यू स्टडी प्रॉपरली फॉर योर बोर्ड एग्जाम, CUET भी आराम से निकल जाएगा. तो इसलिए stop being lazy, stop looking for motivation, be disciplined, wake up early in the morning and start studying. Once you realize how important this is for you, अपने आप सारी नींद भाग जाएगी और सारी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी. And all the very best for your board exams. Obviously मैं और भी videos बनाती रहूंगी on this topic and CUET as well. Let me know अगर तुम्हें CUET related videos देखनी है and क्या देखना है उन videos में. And yeah, I'm gonna end this video right here. So if you made it till here, then comment these emojis and thank you so much for watching this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends. Follow me on Instagram and until next time, bye.